ਯਾਰ ਦੀ ਯਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਬਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਸੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸ਼ੈ ਕੀ ਸੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਲਾਲ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲਾਲ ਕੀਤਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਂਗਾ ਫੇਰਾਂਗੇ, ਡਾਂਗਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। पार्टी को कुचल दिया गया ना। पहले ये कुचले गए, अब वो कुचले गए। ये इन लोगों के ड्रामे हैं, कुचले हम जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौम क्या सोचती है के साथ मैं हूं हमजा जावेद। नाजरीन, इस वक्त मैं मरियम नवाज़ साहिबा के हलके में मौजूद हूं, जहां से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और सीएम बनी। आइए इस हलके की आवाम से जानते हैं कि वो मरियम नवाज़ साहिबा के बारे में क्या सोचते हैं, क्या डिलीवर किया अभी तक। आइए आवाम से जानते हैं। अंकल जी, ये किसका हलका है? मरियम नवाज। मरियम नवाज़ साहिबा ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा है। अच्छा, हाँ। ये बताइए कि परफॉर्म कुछ किया है कि नहीं, अभी तक कोई काम करवाया है कि नहीं? अभी तक तो कोई काम नहीं करवाया। इलेक्शन जीतने के बाद यहाँ का राउंड किया है? कोई काम नहीं किया। अभी तक कोई काम नहीं हुआ। चक्कर वगैरह कोई लगाया हो? नहीं, कोई चक्कर भी कोई नहीं। ਵੋਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਠੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। आप नून लीग कितने बड़े सपोर्टर हैं? ਮੈਂ ਕਟਰ ਨੂਨ ਲਿਖੀਆਂ ਵਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਟਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਵੋਟ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਉਰੇ ਆਓ ਜਰਾ ਵੇਖਣਾ ਜਰਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਬੜੀ ਕਿ ਯਾਰ किस चीज़ पे शर्म आती है? कौन सा ऐसा काम? ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗੰਦ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਹੀ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। अच्छा, अगर इतने बुरे हालात है तो आप क्यों वोट देने के लिए तैयार ਵੋਟ हैं? ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਬਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। तो उसके रीज़न क्या है? जब देखिए इतने बुरे हालात है, लोग आपको बददुआएं देते हैं। ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। मरियम नवाज से इश्क है? ਨਹੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ। नवाज शरीफ साहब ਉਹ के साथ ਸਾਡੀ ਸਭ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ। बेहतरीन है, लेकिन कोई एक रीज़न बताएं कि बाकी लोग भी उनको वोट दे सकें। देखें, आप खुद कह रहे हैं परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो वोट नहीं देना चाहिए। ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਸੁੱਜ ਗਏ ਭੱਜ ਕੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਬੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੰਨਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਬੋ ਆਂਦੀ ਉੱਥੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾਓ ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਘਰ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਔਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਰੱਬੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ। देखें, जब आपका ही काम नहीं करवाया तो फिर आप उन्हें वोट क्यों देंगे? ਬਸ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਦੀ ਯਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਬਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। अच्छा, मरियम नवाज साहिब का हल्का है ये वाला, यहाँ पर जीतने के बाद कोई काम करवाया कि नहीं करवाया? ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਗੁਲੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਸ਼ਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਟੀ ਸੀ ਤੇ ये ਇਲੈਕਸ਼ਨ आपके साथ खड़े हुए कह रहे नहीं करवाया काम। ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਟੀ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਸ इलेक्शन से पहले ਪੱਟੀ वो तो ਸੀ। पहले से काम हो रहा था। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰਾਣਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਦਾ ਹਲਕਾ ਨਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਣਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। अच्छा, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ। आप किसको वोट देते हैं? ਓਏ ਯਾਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਪਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੈਗਾ। दिल नहीं मुतमईन है? हाँ। क्यों नहीं मुतमईन? ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਐਸੇ ਨੇ, ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ कि ਮੁਖਲਿਸ। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, बिजली के रेट आप ਇਹ ਰੋਜ਼ੀ ਅਦਲ ਤੋਂ ਖੈਰ ਹੈ। ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਜ਼ੀ ਅਦਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। अच्छा, ਅਸੀਂ ਰੋਣਾ ਹੀ ਰੋਣਾ ਹੈ। अगर 500-700 हो जाए ਕੁਛ ਵੀ फिर, ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਰੋਣਾ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰਨੀ ਹੈ। पेट्रोल अगर 1000 हो जाए फिर, अगर इनके दौर में हो जाए, ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। मोटरसाइकिल तो थले आ जाना ना फिर। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। देखो, लोगों ਨੂੰ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸ਼ੈ ਕੀ ਸੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਥਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ। ਲਾਲ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਰਤਾ ਲਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਂਗਾ ਫੇਰਾਂਗੇ, ਡਾਂਗਾ ਨਾ ਕਰੋ। ये बताइए, मरियम नवाज साहिबा का हल्का है, यहाँ से वो जीती हैं और सीएम बनी हैं, क्या लगता है उन्होंने अभी तक कोई परफॉर्म किया, कोई काम करवाया कि नहीं? सर, आपके सामने बाज़ार के हालात हैं, ठीक है। इन्होंने कहा था कि आज से कुछ देर पहले एक बड़ी बात वायरल हुई थी कि यहाँ पे कोई बाहर स्टॉल नहीं लगेगा, डीसी आएगा, ये होगा वो होगा। आप देख रहे हैं कोई ऐसा हुआ कुछ आपके सामने ना, आपका कैमरामैन ये दिखाए कोई चीज़ किसी को नज़र आ रही है? ये वाला चलें, ये तो जनरल बात हो गई हल्के के हवाले से। कुछ गलियाँ शलियाँ बनी हो, कोई और काम हुआ हो सर, हल्के में? ये बारिश हो जाती है, इधर इतना पानी आ जाता है, ठीक है। ये हमारी दुकानों के अंदर पानी चला जाता है, कोई निकासी का निज़ाम नहीं जल्दी आता, ठीक है।
इतना आप यहाँ बुरा पे काम करते हैं? सर ये मेरी ज्वेलर्स की शॉप है अच्छा, ज्वेलर्स की दुकान है। जी, मेरी अच्छा, ये बताइएगा काम के हालात कैसे हैं मरियम नवाज साहिबा के सर दौर में? 2,65,000 रुपये तोला आज सोना। कौन गरीब आदमी बनाएगा? किसी को भी मैं कहता हूँ बहुत मुश्किल है गरीब आदमी के लिए। एक नाक का जो कोका है ना वो भी इस टाइम 5,000 रुपये हर करीब चीज़ है। महंगी हो गई है, बिजली महंगी हो गई है, आटा महंगा हो गया है। ऐसे ही। देखिए 50 रुपये बढ़ा के 10 रुपये कम कर देना तो कोई बात सस्ती नहीं नहीं ना। देखे ना पेट्रोल एक दफ़ा बढ़ाते हैं 15 दिन बाद फिर कुछ 2-3 रुपये कम कर दिया, ये तो कोई बात ना हुई। ये आवाम को रिलीफ तो ना हुआ। अच्छा, आपने वोट किसको दिया था? सर मैंने तो पीटीआई को वोट दिया था। पीटीआई को वोट दिया था, क्यों? सर मुझे उस बंदे की एक ही बात बहुत अच्छी लगती है, वो जेल के अंदर भी बैठा है ना तो उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं, वो अल्लाह का नाम लेने वाला बंदा, ठीक है। ये लोग वैसे नहीं हैं। अच्छा, अल्लाह के नाम। क्या बुरा लगता है आपको मरियम नवाज में कि आप उन्हें वोट नहीं देना चाहते? कोई गलती होगी, कोई खामी होगी? सर देखे ना कि अब मैं आपको क्या बताऊँ, बात वही है ना कि गरीब आवाम है, गरीब आवाम का सोचें कि यहाँ पे कौन बंदा है जो खुशहाल है? सब बंदा, हर बंदा इमरान परेशान खान है। के दौर में भी तो नहीं था। सर इमरान खान के दौर में पेट्रोल कितना था, आज इनके दौर में पेट्रोल का क्या रेट है? इमरान खान के दौर में सोने का रेट क्या था? अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन के अंदर भी अच्छा काम रहा, लॉकडाउन के अंदर भी। सारे लोग बात करते हैं लॉकडाउन में जब दुकानें बंद थी हमने बहुत पैसे कमाए, और अब पैसे नहीं कमा रहे। किस तरह से पैसे कमाए थे लॉकडाउन में? सर लॉकडाउन में लोग तो घरों में आके एक काम हुआ, इतना पैसा निकला लॉकडाउन में। इमरान खान ने लोगों को 12-12 हज़ार रुपये दिया, मिला है उन्हें, मिला है। अब ये जो नई स्कीम इन्होंने बनाई है 15 लाख रुपया जो आवाम को मिलेगा, वो उसके पास 5 मरले का प्लॉट भी होना चाहिए, ठीक है। 5 मरले के प्लॉट के अलावा, ठीक है, और उसके बाद वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाला प्रोग्राम में शामिल भी होना चाहिए। वो इसका मतलब है कि वो तो बेनज़ीर इनकम यानी सपोर्ट गरीब में आदमी तक तो नहीं पहुंच सकेगी ना पहुंच चीज़। सकती नहीं चीज़। या तो वो शामिल ही नहीं होगा या उसके पास 5 मरले का घर नहीं होगा। 5 मरले का 5 मरले का प्लॉट यानी कि 2.5-3 करोड़ का मालिक होना चाहिए उसको पहले से। ऐसे ही है, ऐसे ही है। लाहौर तो में तो यही है 15 ना। लाख, जिसको 2.5-3 करोड़ का जो मालिक है उसको भी 15 लाख रुपए 15 लाख का क्या करना? करना? बच्चन मरियम नवाज साहिबा का हल्का है, परफॉर्म किया अभी तक के नहीं? अभी तक तो कोई ख़ास काम नज़र नहीं आता इधर निश्तर में। बस तकरीबन जब से वो इधर से इस हल्के से जीती हैं तो कोई 1-2 चक्कर इधर उन्होंने लगाया है, वो भी जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए। फॉर्मेलिटी को काम तो किया होगा, आपने देखा होगा यहाँ पर आई हो, लोगों को कहा हो ये काम कर लें, यहाँ से ये रेडियाँ हटा दें, जी, जी। तो कोई ऐसा कोई काम? आपके सामने है रेडियो का सीट भी जो है, बाज़ार सारा भरा हुआ है, धंधा इधर आम चलता है, माफिया बेलगाम है, कोई पूछने वाला नहीं है। कौन सा धंधा चलता है यहाँ पे? आपके सामने ही सारा चल रहा है, रेडियाँ लगी हुई हैं, रोड पे रेडियो लगने का कौन सा हक है? माफिया कौन सा है? माफिया माफिया तो नहीं है, गरीब लोग हैं, उन्होंने आगे रेडियाँ लगाई हुई हैं। भाई गरीब लोग हैं, वो भत्ता देते हैं, उनसे जो भत्ता ले रहा है एलडी है, क्या है? माफिया है। उनका काम नहीं, बता देते हैं एलडीए वालों को। बिल्कुल भत्ता चलता है, आपको नहीं पता? आपको इतना अरसा हो गया न्यूज़ कास्ट नहीं, यहाँ पर अब देखें ना, यहाँ पर हम इस हल्के में तो नहीं आते हैं, इस हल्के का मैं क्या बताऊँ। चले आप चले जाएं, ये साथ में मस्जिद है, मस्जिद के साथ पार्क है, पार्क के साथ आप चले जाएं, पूरी एक लाइन है रेडियो की। बाजार से आप जब गुजरेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इधर से गुजरना कितना। भत्ता किसको देते हैं? भत्ते वाली बात में है, किसको भत्ता देते हैं? तो भत्ता मैं तो नहीं लेता, एलडीए लेता है, साफ सी बात है। अब वो अगर ना चाहे इधर लगवाना तो रेडियो कैसे लग सकती है? कोई है ऐसा? कानून से तो कोई बात क्या आपने कभी देखा आपके सामने भत्ता लिया? ओ भाई आप जाके उन रेडियो वाले से पूछे, वो खुद बताएंगे, मैं क्या बताऊँ। रेडियो वाले अगर ना माने? मानेंगे, क्यों नहीं, मैं मनवाऊँगा। चलें आप हमारे साथ चलें, देखते हैं कि कौन नहीं मान, किस तरह मान। ओ प्यारे भाई आप ये बताएं, जिस बंदे ने इधर 2,000 रुपये 4,000 रुपये शाम को कमा के जाना है, वो 200-400 रुपये उसमें से दे रहा है, तो वो कैसे मानेगा कि आप मैंने बहुत इधर। बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि एलडीए वाले आते हैं यहाँ से पैसे लेके जाते हैं, प्रूव करें, ज़ाहिर बात है फिर जो दरमियान में शामिल है उन लोगों को सजा हो। ओ प्यारे भाई अब आपके न्यूज़ के सामने तो कोई मुश्किल ही मानेगा। वैसे आपको तो मैं आपको बाकायदा रिकॉर्डिंग करके देता हूँ, वो ये कहेंगे कि आप हमसे रिकॉर्डिंग करके दें। मैं दूंगा उसका, बताएं फिर आप क्या एक्शन कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ आप रिकॉर्डिंग करके दें, आप हम बताएं चलाएंगे। ना। ओ भाई देखते- आगे का सीन बताए ना, ये कितनी सारी इधर मामला हो रहा है, कौन सा उस पर एक्शन कौन सा होता है वो बताए ना। मेन चीज़ तो ये है। अब मैं किसी के साथ जाकर उसकी रिकॉर्डिंग लेके आपको सबूत देता हूँ, रेडी वाला खड़ा वो कह देता है कि जी देखें हम इधर से परमानेंट तौर पे इतना हमारा मंथ फाइनल हुआ है, तो वो मंथ अगर आपको मैं रिकॉर्ड ही करवा दूँ तो उस पर एक्शन क्या होगा? एक्शन देखें, जब
ये चीज़ें चलती हैं, मीडिया पे चलती ऐसे हैं, ही है। तो पुलिस वाले देखते हैं, इदारे हरकत में आते हैं। मरीम नवाज़ साहिबा का हल्का है, एक हाइव मिलेगी मीडिया में आने के बाद, लोग इसके क्लिप वायरल होते हैं। उसके बाद मरीम नवाज़ साहिबा तक जब बात पहुंचेगी या किसी भी बड़े बंदे तक बात पहुंचेगी, फिर वो एक्शन लेंगे इसके ऊपर। और अल्लाह के नेक बंदे, क्या बड़े बंदे तक बात पहुंचेगी? जब नीचे से लेकर ऊपर तक जो सारा सिस्टम है वो करप्ट है, तो दरमियान में क्या चीज़ चलेगी? आप ये समझिए कि आप जो मीडिया वाले हैं, या तो आप अपना नुकसान करवाना चाहते हैं या मेरा करवाना चाहते हैं। सिंपल सी अल्फाज, इसमें तो कोई छुपने वाली बात है ही नहीं। अच्छा, मरीम नवाज़ साहिबा का हल्का है ये। आप ये बताएं कि यहाँ पर कोई परफॉर्म किया उन्होंने? हाँ जी किया, एक दफ़ा आई थी। एक दफ़ा आने के अलावा कोई काम किया? परफॉर्मेंस होती है ना, बंदा का आ जाए चक्कर लगा जाए, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस होती है। अच्छा, ये परफॉर्मेंस है। हाँ। उसके अलावा कोई परफॉर्म किया हो? यही है, मतलब काफ़ी है, हम नून लीग के लिए काफ़ी है। अच्छा, आपने किसको वोट दिया? नून लीग को, अच्छा, नून लीग को भाईजान ने वोट दिया था और एक बार मरीम नवाज़ साहिबा ने चक्कर लगा ली, इनके लिए काफ़ी। इनके लिए काफ़ी है। आपने किस लिए वोट दिया था? चेंजिंग के लिए दिया था वो। तो आपने तो चक्कर के लिए वोट दिया था मेरा मेरा ख्याल में वो समझे चेंजिंग को चक्कर समझती है। ख्याल। ये एक चक्कर लगा देना, वो चेंजिंग है ना यहाँ चक्कर पे। देना, मैंने चक्कर देना कहा है, अच्छा, ये चक्कर दिया है। चक्कर दिया, आपने नून लीग को वोट दिया बिल्कुल दिया। और आप तो खिलाफ बोल रहे हैं। देखो, मैंने वोट दिया, मैंने बिक नहीं गया, हाँ हाँ हाँ, क्या बात की। ठीक है ना। वोट जो उसको देंगे जो काम करेगा, जो नहीं करेगा कोई भी वो नहीं देंगे। अगला वोट किसको देंगे? देखेंगे उसको, जो को बंदा सही आ गया तो वोट दे देंगे। पर वैसे तो हमारे वोटों से बनते ही नहीं है। आगे कौन आगे कोई नया पैदा वैसे तो हमारे वोटों से बनते ही मैंने नहीं। देखा है अवाम का, जब भी हम अवाम में जाते हैं तो अवाम का इत्मीनान बड़ा कम होता जा रहा है इस नहीं, बात ये- के ऊपर। ये अब देखेंगे कि कोई फ्लैक्स नहीं लगाता, अपनी तस्वीर नहीं लगाता। इसकी वजह क्या है? पता है कि यार ये हमारे वोटों से तो एक आते पार्टी नहीं। को कुचल दिया गया ना। पहले ये कुचले गए, अब वो कुचले गए। ये इन लोगों के ड्रामे हैं, कुचले हम जा रहे हैं। भाईजान, वोट किसको दिया था? सर ये तो एक जो है ना कॉन्फिडेंशियल चीज़ होती है फिर कॉन्फिडेंशियल की होती है, आपके दोस्तों को नहीं पता आपने किसको वोट जी, दिया? अदरवाइज नून को दिया है। मुस्लिम लीग नून को दिया। जी, जी। आपने मरीम नवाज़ साहिबा को यहाँ पे वोट जी दिया? बिल्कुल दिया। अच्छा, यहाँ पर कोई काम करवाया वज़ीर आला बनने के बाद? कोई चक्कर लगाया हो, कोई काम किया हो यहाँ पे? जी बिल्कुल, आपकी ये जो ना दाएं साइड पे गली है ये भी कंप्लीट बन चुकी है। आपके बाएं साइड पे गली है, ये अभी बनी है? जी सर, इसका सीवरेज का, पानी का, गैस का, इसके तीनों कनेक्शन नए हो चुके हैं। इसके आगे जितनी भी गलियाँ ये सारी की सारी नहीं बननी, इनका इफ्तिताह हो चुका है। अच्छा, ये सारी गलियाँ यहाँ पे नहीं बनी जी हैं? सर, जी सर। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, इसके अलावा कोई काम हुआ? हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो रहा है। बाकी आप वो देखिए, वो सामने बोर्ड लगे हुए हैं आटे के हवाले से मरीम नवाज़ की अपना हिदायत पे आटा सस्ता मिल रहा है। 700 से उठा के 885 पे मिल रहा है। अच्छा, इसके बाद बताइएगा कि बाकी कोई बिजली या फिर कोई और काम, कोई परफॉर्मेंस, कोई यहाँ पर बाज़ार के कामों के हवाले से कोई और काम? बिजली के हवाले से ये है कि स्ट्रीट लाइट्स का होता है इशू। वो देखिए आपके सामने ऑन है, लगी हुई हैं। नहीं, क्या आप देखिए ना, बिजली के बिल कितने ज़्यादा थे। हाँ, बिल तो ऑफिस से जा रहा था, लेकिन अब उन्होंने रिलीफ दिया है, इंशाल्लाह मिलेगा। 2 महीने के लिए रिलीफ मिला? जी जी बिल्कुल, 2 माह के लिए रिलीफ मिला है। तो अल्लाह करे इसके बाद भी इनको अल्लाह दे दे और देते रहे। रिलीफ भी 14 रुपये मिला है। देखिए ना, 30 रुपये बढ़ा के 14 रुपये रिलीफ दे देना तो कोई रिलीफ नहीं है। किस चीज़ का 30 बढ़ाया? बिजली का आप देखते हैं, आप 200 यूनिट से जैसे ही क्रॉस होता है ना, आपके घर में एसी वगैरह है? जी जी एसी वगैरह है? बिल्कुल है। कितना बिल है? मेरे जी 19,500 है एक AC चला के। अच्छा, एक एसी हम देखें, हम आवाम में घूमते फिरते हैं, लोगों के 50-50, 60-60 हज़ार रुपये एक एसी के साथ, जिनका एसी नहीं है, उन लोगों के 15-20 नहीं आती कि ये जो कंट्रोवर्सी क्यों फैलाई जाती है कि एक AC के साथ 50,000 बिल आता है। कौन कहता है? आप कहते हैं मैं भी आपको अपना बिल दिखाता हूँ, जितने आप यूनिट यूटिलाइज करेंगे उतना आपको बिल आएगा। आपके करीबी जो लोग हैं, जी, जी। उनका बिल भी ज़्यादा आता है या कम आता है? नहीं, ऑलमोस्ट ओवरऑल बिजली के बढ़ने से फ़र्क तो पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। ये आम वाम पे फ़र्क पड़ता है। ये इतना कम करके भी जो है ना रेट ज़्यादा है। इमरान खान के दौर में भी इतना बिल आता था? इमरान खान साहब के दौर की आप बात ना करें, इमरान खान साहब के दौर से पहले की बात करें, उसके बाद इमरान खान साहब के दौर की बात करें। उससे पहले ही बात कर लेते हैं। जी जी करें। तो उससे पहले कितना बिल आता था इमरान खान साहब के दौर के अंदर? कितना फ़र्क कितना पड़ा था और उसके बाद अब कितना फ़र्क पड़ा है? सर जी, बात पता है क्या, बात अगर होगी तो बात पे शुरू से होगी। जब मियाँ साहब को हटाया गया है, बिल्कुल। रोटी कितने की थी, घी कितने का था, डॉलर कितने का था, उसके बाद जब इनकी हुकूमत आई है उसके बाद कितना जो सारा मामला चेंज हुआ है, वही आप भी चीज़ ये मानते हैं। उसके बाद ये लोग आए हैं। अब इन लोगों का कहना ये था PTM की हुकूमत का कि इन लोगों ने इतने इतने वायदे किए हुए थे जिनकी वजह से अब हमें वो भुगतने पड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है बात दुरुस्त थी? ऑब्वियसली तो लग तो रहा है, जिस तरह से IMF से इन्होंने कर्जा लिया। बाकी तो ज़ाहिर बात, इनको भी पेट लगा हुआ है, जितनी ज़्यादा वो PTM वाले वो अपने इकट्ठे अच्छा, एक होंगे। बात कही जाती है नून लीग के बारे में, खाता है तो लगाता है, आप मानते हैं इस बात को?
आप मुझे खाने का कोई सबूत दें। नहीं, मैं वैसे ही इस बात पे आपकी एक राय, मैं एक राय मान रहा हूँ। अगर एक शोषा छोड़ा जाए ना तो उसके हवाले से फिर ये ना, आपने ये बताना है कि ये आप ना- इस बात को मानते हैं या नहीं मानते? जी मैं नहीं मानता। यानी कि वो नहीं खाते। मैं नहीं मानता। नहीं, अभी आपने कहा ना पेड़ लगा हुआ है, जी, उस बात देखिए पे। मेरी बात सुने। बात ये है कि एक बंदा देखें, चाहे वो नून का है, चाहे वो पीटीआई का, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, अगर एक बंदा 2 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके एमएनए बनता है, वो क्या आवाम की खिदमत करने के लिए बनता है? ये भाई कारोबार है। अच्छा, जी सर, ये कारोबार करने आते हैं हमारे ऊपर। ये है कि कोई 2.5 करोड़ कारोबार की में- इन्वेस्टमेंट किया, 2.5 अरब निकाल जी सर, जी सर, चाहे कोई भी है, लेकिन ये है कि कोई ज़रा कम निकाल लेता है, कोई ज़्यादा निकाल लेता है। निकालता कौन नहीं है वो मुझे बताएं। जी तो नाजरीन, ये था मरियम नवाज़ साहिबा का हल्का। अगर आप मेरे दाएं जानिब देखें तो यहाँ पर पीने का साफ़ पानी है, लेकिन यहाँ पर नीचे काई जमी हुई है, बहुत बुरे हालात हैं यहाँ पर। इवन यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल है। और इसके बिल्कुल ही साथ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इतना बुरा पानी, इतना गंदा पानी यहाँ पर मौजूद है, मच्छर के बुरे हालात हैं। अगर इसके बाद लोग बीमार नहीं होंगे तो क्या होगा? आप क्या सोचते हैं कि क्या मरियम नवाज़ साहिबा की परफॉर्मेंस इस वक्त बेहतर है या नहीं है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमज़ा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।